انہوں نے آواز پہلے کی تھی، میں تو چاہتا ہوں آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر جہاز کا رخ موڑ دیا جاتا ہے اسلام آباد کی بجائے کسی اور سٹی میں آپ کو اتارا جاتا ہے تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور دوسرا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ فوج جیسا مقدس ادارہ اگر بیچ میں پڑتا ہے، کوئی وہ مداخلت کرتے ہیں، اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں نہ آئیں، ملک کے مسائل یا کوئی انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے، تو کیا آپ فوج کا ان کا کوئی مثبت جواب دے سکتے ہیں؟ پاک فوج مجھے یہ نہیں کہہ سکتی، وہ مجھے کیوں کہے گی آپ ملک میں نہ آئیں؟ کوئی آئین، کوئی قانون، پاک فوج کبھی خلاف آئین، خلاف قانون کام نہیں کر سکتی۔ وہ ایک پاکستانی شہری کو کیوں کہے گی نہ آئیں؟ وہ میں نے تو اس لیے عرض کیا کہ اگر یہ ریزسٹ کریں گے تو ہم بھی ریزسٹ کریں گے۔ پاک فوج آئے گی تو ریزسٹ نہیں کریں گے، لیکن پاک فوج سے میں کسی غیر آئینی، غیر قانونی اور بلا جواز اقدام کی توقع نہیں کرتا۔ میں یہ بات نسیم صدیقی، ایکسپریس نیوز۔ آپ کا جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ اطمینان ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے سپریم کورٹ میں ریٹ کی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دی تھی کہ آپ غیر ملکی ہیں، کینیڈین نیشنلٹی ہے، اور اس کو انہوں نے آنر نہیں کیا تھا۔ تو کیا ابھی آپ کا جوڈیشری کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کو وہاں سے انصاف ملے گا؟ نہ، میں تو اس طرف جا ہی نہیں رہا۔ میں نے جو سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل سے جوڈیشل کمیشن کی بات کی، اس کے ساتھ شرط عائد کی ہم نے مطالبے کہ وہ ججز ہوں جن کی غیر جانبداریت پر ہم اور وہ تمام اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز جو اعلامیہ میں ہمارے ساتھ ہیں وہ متفق ہوں، چونکہ ہر قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو کہا ہر ادارہ پولیٹیسائزڈ ہو گیا ہے۔ مطلب اوورآل سپریم کورٹ پہ آپ کو اوورآل بطور ادارے کے اعتماد ہوتا ہے، ایز انسٹیٹیوشن اعتماد ہے، مگر افراد انڈیویجول ٹو انڈیویجول قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں اور ناقابل اعتماد بھی ہوتے ہیں۔ انسٹیٹیوشن اپنی جگہ، میں اس کے تقدس کو برقرار کروں۔ اب آپ دیکھیے کہ پولیس ابھی اس وقت بھیجی جا رہی ہے ARY آفس کراچی کو، اس کو مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ بتائیں یہ کون سا قانون اور کون سا عدل ہے؟ ریٹن آرڈر ابھی تک ممبران نے خود کالا فیصلہ کیا اور ریٹن آرڈر بھی نہیں دیا، اور اس میں شو کاز نوٹس نہیں دیا، سماعت نہیں کی، ریٹن آرڈر نہیں دیا، کوئی ایک قانونی تقاضا پورا نہیں کیا۔ ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، ناجائز آرڈر پاس کیا۔ پولیس کا کیا تعلق ہے اس میٹر کے ساتھ کہ وہ پرسنلی، یعنی اندازہ کریں یہ انتقامی، پوری پولیس کو ریاستی جبر اور بدمعاشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم اس معاملے میں ARY کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اور میری پوری تحریک، پاکستان عوامی تحریک کے لاکھوں کارکن اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن اور سول سوسائٹی 100% ARY کے ساتھ کھڑی ہے۔ احتجاج میں آپ کے ساتھ شریک ہیں اور ہر ممکن اس کا تحفظ کریں گے، اور انشاءاللہ جبر کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ چند دنوں کی بات ہے، یہ سیاہ رات ہے۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، اس کو ختم ہونا ہے۔ میں بتا رہا ہوں یہ ٹھہر چکا ہے، ان کا اقتدار ختم ہوگا، یہ نہیں بچ سکتے۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے مستقبل اپنی آنکھوں سے، جس وجہ سے ایسے ہوٹے ہتھ کنڈے پر آئے ہیں۔ انشاءاللہ بحال ہوگا، بحال ہوگا۔ پاکستان میں سیکورٹی کی صورتحال کا آپ کو علم ہے، تو اس کے باوجود آپ نے بائی ایئر کی بجائے بائی روڈ لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ ہے ان حالات میں؟ وہ کس طرح جا رہا ہوں لاہور، کس طرح نہیں، یہ اسٹل ابھی جا کے فیصلہ ہوگا، ابھی کوئی حتمی چیز سامنے نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ۔ آپ قاضی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے یہ جو ایکشن کیا ہے وہ ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ فوج کے اس آپریشن سے، جہاں فوج فوری طور پہ انوالو ہوئی ہے، وہ چیز جو وڈیسا سے ڈیمانڈ کر رہی تھی، اور ان کو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے طور پہ کہ اس وقت فوج اتنے سے چانسز نہ لے، تو جو پولیٹیکل تھریٹ آپ کی طرف سے آ رہی تھی اس کو انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایکشن کیا تاکہ آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو ڈرانے کے لیے کام کیا جائے؟ آپ سمجھیں دونوں ایونٹس جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ان کو یہ علم ہے، یہ ایک بات کلیئر ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کسی لحاظ سے بھی دہشت گردی کے خلاف اس طرح کے آپریشن کے حق میں نہیں تھی، نہ نظریاتی طور پر نہ سیاسی طور پر۔ نظریاتی طور پر ان کے اندر بیٹھے ہوئے وزراء ان کے ہم خیال ہیں، ان کے ہم نوال ہیں، اور ان کے پروموٹر ہیں، ان کے پروٹیکٹر ہیں۔ وہ ان کو الیکشنوں میں سپورٹ کرتے ہیں، ان کو جتواتے ہیں، اور انہوں نے 80s کے زمانے سے فرقہ وارانہ قتل و غارت گری سے، جب دہشت گردی کا آغاز ہوا تھا نا، سیکٹیرین کلنگ سے،
उस वक्त भी ये उसके सरपरस्त थे। जिन्होंने ज़ियाउल हक साहब के दौर में, उस आमरीत के दौर में ये काम शुरू हुआ, और उनको दहशतगर्द तबकात को, ऐसे लोगों को, चूँकि आवाम साथ नहीं होती तो दहशतगर्द तबकात पैदा करके वक्तन फ़वक्तन उनसे अनरेस्ट पैदा करने और अपने कई इक़दामात के जवाज़ पैदा करने की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त से ये उनके प्रमोटर और स्पॉन्सर थे और हमेशा से उनके ये पार्टनर रहे हैं, और पंजाब को इन्होंने सेफ़ हेवन्स बनाए रखा है। ये नहीं चाहते थे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि ये ऑपरेशन हो। फ़ौज ने देखा अनफ इज़ अनफ, इंतहा हो गई है, और पाकिस्तानी रियासत के अब बचने की, कराची का वक़ूआ होने के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, तो फ़ौज ने ऑपरेशन कर दिया। जब ऑपरेशन कर दिया तो एक दिन के बाद, अगर मैं सही हूँ, तो वज़ीर आज़म के पास कोई चॉइस नहीं था कि वो इसको यस करता। उन्होंने फिर इसको एंडोर्स किया असम्बली के फ्लोर पे, ऑपरेशन शुरू होने के 24 घंटे के बाद, बादिल नाखास्ता। और अब उनको रंज है, ये अरबों रुपए की रिश्वत देते हैं दहशतगर्द कमांडरों को, दहशतगर्द तंजीमों को ख़र्चा देते हैं। आप पूछेंगे क्यों? ये नहीं, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी करवाने के लिए नहीं, पंजाब में दहशतगर्दी न करने के लिए। कहते हैं आपके पास पूरा मुल्क फ्री है, लाशें गिरा दें शिया मकतब फ़िक्र के लोगों की, चाहें तो बलूचिस्तान में लाशें गिरा दें, सुन्नियों की, शियों की और आमतुन्नास की कराची में लाशें गिरा दें, KPK में, जहाँ चाहें करें, एक पंजाब को छोड़ दें और हमारे ख़ानदान को छोड़ दें, हमारी हुकूमत को छोड़ दें। इसके लिए वो अरबों रुपए की बाकायदा रिश्वत लेते हैं इनसे। ये उनके फ़ंड का एक ज़रिया है और ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लिहाजा ये नहीं चाहते थे कि उन्हें अनॉय करें। जब ये हो गया तो अब ये इनकी ये कोशिश थी कि ऐसी बदअमनी और इंतशार मुल्क में पैदा किया जाए, जिससे इन्होंने एक सवाल किया था कि शायद फ़ौज डिस्टर्ब हो और ऑपरेशन की नाकामी की सूरत पैदा हो। अब चूँकि रोक तो सके नहीं, लिहाजा मुल्क में बदअमनी, अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने के लिए ये कत्ल गारत गरीबी कराई। और मेरा आना, उसको तो ये हाइपी ना मिलती। मैं तो इस वक्त को इस्लामाबाद धरना देने का मैंने तो ऐलान ही नहीं किया, और इस्लामाबाद मैं ख़ास बता रहा हूँ, धरना देने का हमारा प्रोग्राम ही नहीं है। भाई मैंने तो उतर के सीधा चला जाना था लाहौर। अगर कोई रुकावट न डालते और न डालें तो हमने तो कोई धरना ही नहीं देना, ना इनका कोई घेराव जलाव करना है, उतर के चला जाना इनका क्या बिगड़ता। ये सिर्फ पूरे मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने के इक़दामात कर रहे हैं, और फिर कातिलाना इंसानियत पर हमला करने के बाद मासूम शहरियों पर अब सियाफत पर कातिलाना हमला किया है RY पर। क्या डर है उन्हें? अचानक ये कौन सा टाइम था जुमे के दिन शाम को, ताकि कोर्ट में ना जा सकें और ताकि पीर की सुबह का वक्त गुजर जाए, कवरेज प्रॉपर न मिले। ये सारे हथकंडे ये बताते हैं कि ये हवास बाख्ता हो चुके हैं और उस ऑपरेशन में तरीक़ों से खलल डालना चाहते हैं। लेकिन मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ, मेरे आमद से खलल नहीं होगा, बल्कि ऑपरेशन को और तक़वियत पहुँचेगी। मैं उनको पहले की तरह मॉरल, थियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दूँगा इंशाअल्लाह। एक जो कंसर्न है मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से शो किया जा रहा है कि माशाल्लाह आप तो उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी मजहबी शख्सियत है और एक आपका काम है। कुछ ये भी कंसर्न शो किया जा रहा है कि शायद एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत आपको पाकिस्तान ले जाया जा रहा है और खुदा न खास्ता एक साजिश हो रही है कि आपको रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि आपका काम बहुत ज़्यादा है, जो इंटरनेशनली अभी आपने भी बताया, और एक बड़ी शख्सियत है आप। और इस हवाले से कुछ आपने कंसर्न लोगों के बहरहाल, क्योंकि आपकी ज़िंदगी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुसलमान के लिए है, उस हवाले से कुछ कंसर्न्स को आपने मद्देनज़र रखा है? देखिए कि वहाँ पे कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ ना हो। देखिए हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं। मैंने आपको हमेशा बात की, स्टेट के वसाइल बेतहाशा होते हैं, एक। दूसरा, फिर कई जमातें, तबक़ात वो हैं जिनको ज़िंदगियाँ गुजर गई फंडिंग पर पलते हैं, उनको बैरूनी फ़ंड्स आते हैं, उनके वसाइल कई होते हैं। और फंडिंग करने वाले मुल्क भी दुनिया को मालूम है और फंडिंग्स लेने वाली जमातें भी मौजूद हैं। मैं वो शख्स हूँ कि मैंने पूरी लाइफ में 33 साल में 81 से क़याम, तहरीक के क़याम से लेकर आज के दिन तक बरमला कहा है कि मैं यूँ ये नहीं कहता कि सिर्फ़ हम, ताकि कोई और बिलावजह नाराज़ ना हो जाए, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहा है कि 33 साल में कोई सियासत के नाम पर, तालीम के नाम पर, मज़हब के नाम पर, शरी
काविशों के नाम पर, सोशल वेलफेयर के नाम पर, ऑर्फनेज के नाम पर, किसी भी मद में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर एक पैसा भी दुनिया के किसी मुल्क से, किसी NGO से, किसी एजेंसी से, किसी इदारे से, वेस्ट और ईस्ट में या पाकिस्तान के अंदर से किसी एस्टेब्लिशमेंट किसी से एक पाई भी अगर लिया हो तो मैं अपनी हमेशा का गर्दन भी कटवा दूँ। मैं इस गैरत का आदमी हूँ। अब चूँकि वसाइल हमारे सिर्फ हमारे कारकुन हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर, तो महदूद वसाइल, और फिर हमारी एक रवायत है और वो हमारा ईमान है कि हम वसाइल को डाइवर्ट नहीं करते। अगर किसी शख्स ने कोई पैसा ऑर्फनेज के लिए दिया है तो हम वो वहाँ से नहीं हटा सकते। हम खलतमत, करप्शन, बददियानती नहीं करते। जो पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए पैसा देगा वही पैसा इस पर लगेगा। जो तालीम के लिए आया, डिज़ास्टर्स के लिए आया है, वेलफेयर के लिए, मासूमों की गरीबों की शादियों के लिए आया, मिलाद के लिए आया, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए आया, स्कूलों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, एतिकाफ़ के लिए आया, कभी एक पैसा भी इधर से उधर नहीं किया गया। मैंने ये भी कहा है कई बार कि मैंने, गौरी साहब ये बात इम्पोर्टेंट है, और शाह साहब, 33 साल में मैंने हमेशा बरमला कहा है टीवी चैनल्स में। जब आदमी इतनी बात करता है तो सारी दुनिया सुनती है, भाई कोई तो उसको रद्द कर दे ना, कह कर भाई ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने कहा कि 2 काम 33 साल में कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता। एक ये कि मैंने अपनी तहरीक के अकाउंट से, पॉलिटिकल या रिलीजियस किसी भी मद और अकाउंट से, 1 कप चाय का और 1 लुकमा रोटी का 33 साल में मैंने नहीं खाया, न मेरी फैमिली ने, मेरी औलाद ने खाया है। हम जब खाना भी करते हैं ना सेक्रेटेरिएट में मेहमानों का, जो एंटरटेनमेंट फ़ंड होता है, और उसके साथ मैं ज्वाइन करता हूँ, तो मैं उस अपनी प्लेट, अपना खाना और अपनी चाय के कप का दुनिया जानती है। मैं अपनी फ़ंड अपनी पॉकेट से, मेरे सेक्रेटरी के पास पैसे रखता हूँ, मैं अपनी पहले पेमेंट करता हूँ, तब मैं खाने या चाय के कप को हाथ लगाता हूँ। और वो दरवाजे के सामने आके ना मुझे ऐसे इशारा कर देता है, मैं देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि मैंने पैसे आपके अदा कर दिए हैं, उसके बाद हाथ लगाता हूँ। जिस शख्स ने इस तरह की ज़िंदगी बसर की हो, वो फ़ंड इधर उधर करने देगा अपनी तहरीक को। और दूसरा मैंने कहा कि कोई रुए ज़मीन का शख्स शर्क से गर्ब तक नहीं कह सकता कि मैंने पूरी उम्र में कभी दीन की खिदमत पर, तसानीफ़ पर ख़िताब करता हूँ, तकरीर के लिए सफ़र करता हूँ वर्ल्ड वाइड, कोई नहीं कह सकता कि किसी ने मेरी खिदमत की, लाखों रुपए, हज़ारों रुपए कभी किसी ज़माने में दिए और मैंने कबूल कर लिए। रुए ज़मीन पर मैंने कभी नहीं किए। जब किसी ने ज़ोर लगाया मैंने कहा मैं दीन बेचता नहीं हूँ, बस ख़त्म, कह दिया। मैं आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अहले बैत अतार की सुन्नत पे अमल करता हूँ, एक अदना सा गुलाम हूँ उनका। तो मकसद ये है कि हमारे वसाइल बेटे महदूद हैं, हम दाएं बाएं वसाइल नहीं कर सकते। जितने लिमिटेड वसाइल जिस मद के लिए होते हैं उसके मुताबिक मकदूर भर कोशिश करते हैं। हमको बेतहाशा सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते, थोड़े रखते हैं। और फिर उसके लिए असला लेना होता है विद लाइसेंस, उसके लिए भी लाइसेंस भी नहीं मिलते, हुकूमतें इनकी हैं। तो ये, और आज के ज़माने में आप सिक्योरिटी एजेंसी से हायर भी नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी और सलमान तासीर किस किस को गार्ड के ज़रिए मरवा दिया, यानी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो फिर अपने कारकुन ही ऐसे मौक़े पर आ जाते हैं निहत्थे, जो सिर्फ आके जितना कर सकते हैं। तो जो मुमकिन है हमारी तदबीर में वो करते हैं, और जो हमारी काविश, तदबीर और इस्तेदाद से ज़्यादा है वो अल्लाह के हाथ में है। तकदीर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे न किसी ने कहा है कि आओ आपको रास्ते से हटाने के लिए, तो न किसी ने साजिश की है। ये मेरी पार्टी, मेरी तहरीक का फ़ैसला है। और आप मेरी 80s के ज़माने की तकरीरें सुन लें, आज से 30 साल पहले की, आज से उस वक्त मेरी कमिटमेंट्स हैं हज़ारों सैकड़ों खिताबात में इनकलाब की। मैंने कुरानी फ़लसफ़ा इनकलाब किताब लिखी थी, उसके अंदर मेरी डायरी है 1972-73 की। शायद आपके लिए ये बात नई बात होगी। जब मैं MA और लॉ का स्टूडेंट था, उस ज़माने में इनकलाब, पाकिस्तान में इनकलाब लाने के लिए डायरी लिखा करता था। वो मेरी हैंड रिटन डायरी, मेरी किताब कुरानी फ़लसफ़ा इनकलाब के 2 वॉल्यूम्स हैं, उसमें वो उसके स्कैन होके छपी हुई है। तो मैं तो जवानी के वक्त से कमिटेड हूँ, और 30 साल तक मैंने ये फ़लसफ़ा, ये तरबियत कारकुनों के तरबियत दी है उनको। तो मेरी कमिटमेंट थी, ये फ़ैसला मैंने ख़ुद किया है। खिदमत दीन इल्मी अल्लाह का शुक्र है बहुत कर चुका हूँ, मगर अब वो मैं किताबें ही लिखता रहूँ और ख़िताब भी करता रहूँ, और तकदीर मुल्क की, कौम की यहाँ तक पहुँच जाए, तो मेरा ख़्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं इस महाज पर भी
स्टेप उठाऊं, वरना वो नीरे वाज और ख़िताबें रह जाएंगी, और अगर हालात ना बदले तो किस काम की वो चीज़। ये मेरा डिसीजन है। चलो काफ़ी हो गई बातें। चल नहीं रहा होगा डॉक्टर साहब जी मैंने कहा इतनी लंबी पता नहीं I don't know ये नहीं कोई नहीं चल रही होगी, ये तो मैं सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए बातें कर रहा हूँ बस। आखिर बहुत सारा हो रहा है। डॉक्टर साहब आपकी तहरीक के इनको करने फिर आप कर लें। जी डॉक्टर साहब आपकी तहरीक के नतीजे में अगर पाकिस्तान में सियासी बिसात उलट जाती है, सियासी निज़ाम ही और जमहूरियत ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ रेजिस्टेंस होगी या आपका लेन डाइवर्ट कर दिया जाएगा, उस पर भी ज़ाहिर है आपके जो कारकुन हैं चिराग पा होंगे और आपको भी तकलीफ़ होगी। उसी तरह जो आपकी सपोर्ट में सियासी जमातें आई हैं वो भी उनकी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। तो अगर इस तरह के सारा कुछ हो के माहौल जमहूरियत ख़त्म और कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए फिर वही जूतों की आवाज़ अगर हमें नज़र आई महसूस हुई तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर आयद हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी अजीब सोच है कि जमहूरियत की बसात लिपट जाएगी। मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत है? सिंपल सा सवाल, इसका जवाब दें। कहाँ जमहूरियत है? अगर तो जमहूरियत नाम है, आप तमाम दुनिया की किताबें पढ़ लें, जमहूरी मुल्कों के जितना फ़लसफ़े हैं वो देख लें। अगर तो किसी एक ने आज के दिन तक किसी जमहूरी फ़लसफ़ी ने, जमहूरियत के फ़लसफ़ी ने या किसी पॉलिटिशियन ने या किसी मुल्क ने ये कहा है कि सिर्फ 5 साल के बाद एक दिन की जो वोट कास्ट करने की प्रैक्टिस है बस उसका नाम जमहूरियत है और बाकी और कुछ नहीं, तो फिर तो मैं कहूँगा जमहूरियत है। सिवाय उस एक, वो भी रिग्ड प्रोसेस है एक दिन का, और 5 साल में ज़मीन पर जमहूरियत नज़र नहीं आती। तो बसात तो तब लपेटी जाए ना कोई बसात मौजूद हो। आखिरी दूसरी बात, मैं मार्शल लॉ के लिए जंग ना लड़ रहा हूँ ना मार्शल लॉ आने दूँगा। मार्शल लॉ अगर लगाने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ भी जंग लड़ूंगा इंशाअल्लाह। आप बताएं। डॉक्टर साहब अगर आप जाते हैं और ये सारा कुछ होता है और अगर वो जो सा मिड टर्म इलेक्शन की तरफ चला जाता है तो क्या आप उसमें हिस्सा लेंगे? और अगर आप हिस्सा लेते हैं और उसमें आवाम आपको वोट नहीं देती तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? इसका जवाब बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है। इट इज़ टू प्री मैच्योर कि मैं इस पर कमेंट करूं। सवाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने आपको बेसिक बात की कि मैं सिस्टम के चेंज की जंग लड़ रहा हूँ, बेसिकली सिस्टम की। उससे वो मेरा इनकलाब है, वो इनकलाब जिसमें आप समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट कि जिसमें मैं हकीकी जमहूरियत को हर सतह पे, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, इंस्टीट्यूशनल लाइफ में, जुडिशल लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, हर जगह वो देखना चाहता हूँ। मेरा इनकलाब ये है। मेरा छोटा सा सवाल है और ये बस ये आखिरी हो सवाल है। मैं एक हाईली इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक को रिप्रेजेंट करते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके यहाँ एक सोच है और वो ये है कि वो आपकी मदद नहीं करेंगे मगर मुखालफत भी कोई नहीं करेगा, इसलिए कि इदारे इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। आप सवाल करें। सवाल ये है कि इस वक्त पूरी कौम को आपके ऊपर एतमाद है, हुकूमत को हो ना हो या ना हो। एक मौका ये है कि इंसान एक ख्वाब देखता है लेकिन वो देखता है कि इसके असूल का रास्ता बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल है। ऐसा ना हो आपके लिए अभी हालात ऐसे हैं कि एक सेफ पैसेज मौजूद है, सारी पब्लिक राय जो है वो आपके हक में है। सेफ पैसेज से क्या मुराद कि मैं भाग जाऊं, वापस चला जाऊं? आपके हक में है कि आप जो है वो राय हक पे हैं और आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है। सही। ऐसा ना हो कि जब आप जाएं और सारे रियासती इदारे इस नतीजे पे पहुंच चुके हों कि आपके ऊपर एतमाद करें और हालात का मुकाबला ना कर सकने की वजह से या बाज़ वजूहात की वजह से आप खुद विथड्रॉ कर लें। नहीं, मैं तो विथड्रॉ नहीं करने लगा, ये तो भुला दें। मैंने 10 कितनी मरतबा आप सुनना चाहते हैं जामे शहादत? मैं विथड्रॉ नहीं करने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपने जो कहा था वो हुआ नहीं, कहा मैंने बात